Rahman Rahim. Welcome back to Passionate Brains. In today's lecture, we will discuss exercise of unit number 2, which is a timing structure. So, first question is how many electrons can be accommodated at the most in the third shell of element? So, थर्ड शेल जो है थर्ड शेल में मोस्टली 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो बाय यूजिंग फार्मूला विच इज ट्रू एंड स्केयर, if we calculate, so 18 electrons are present in the third shell. So correct answer is 18. In the third shell, 18 electrons are present. So question number 2 is what information was obtained from the discharge tube experiment? Discharge tube experiment lead to the discovery of electrons and protons by observing the behavior of cathode rays and positive rays. And discharge tube experiment के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑब्जर्व की गई थी बाय कैथोड रेज एंड पॉजिटिव रेज. सो करेक्ट आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल? सो बेसिकली जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के have same atomic number, which means same number of protons and same number of electrons, but they have different mass number, means different number of neutrons. So they are represented by a single position in the periodic table. So correct answer is D. All the isotopes have same number of same atomic number, so there is no need to give them separate place. Next question number 4. Which particle is present in the different number of isotopes? So isotopes के अंदर basically number of electrons same होते हैं, number of protons भी same होते हैं क्योंकि atomic number same होता है. So जो चीज़ different होती है वो mass number होता है, which means number of neutrons different होते हैं isotopes के अंदर. Next we will move question. Next है question number 5. In which isotope of oxygen are the number of protons, electrons and neutrons are equal? यानी कि इनमें से कौन सा आइसोटोप है ऑक्सीजन का जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब में इक्वल हैं? तो ऑक्सीजन 64 सबसे पहले है. तो ऑक्सीजन के बाद ऐसा कोई आइसोटोप नहीं है. ऑक्सीजन डजंट हैव दिस आइसोटोप. द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन 17 and it has 9 neutrons, so this is wrong. And third one is oxygen 16. Oxygen 16 has 8 protons, 8 neutrons and 8 electrons, and making the number of protons, electrons and neutrons are equal. So this is correct. Next question number 6. Uh, what will be the relative atomic mass of nitrogen given the abundance of its two isotopes, nitrogen 14 and 15, and are 99.64% and 0.35% respectively? So the relative atomic mass is calculated as the weighted average of the isotopes. So 14.0021. B is correct relative atomic mass of nitrogen. Next question number 7. How is radiocarbon dating useful for archaeologists? Radiocarbon dating measures the amount of carbon 14 in the organic material to estimate its age. So, which is particularly useful in archaeology? So correct answer is A. It helps to determine the age of organic matter. Next, we will move question number 8. What keeps the particles present in the nuclear intact? So the strong nuclear force is the force that hold protons and neutrons together in the nucleus, overcoming the electrostatic repulsion between the positively charged protons.
Strong nuclear force hold protons and neutrons tightly together. So, correct answer is A. Particles are held together by strong nuclear force. Question is away from oppositely charged nucleus. So, electrons do not spiral into the nucleus because they exhibit wave-like behavior as described by the quantum mechanical model. So, which keep them in the orbital as specific distance from the nucleus. So, correct answer is B. By revolving around the nucleus, electrons keep themselves away from oppositely charged particles. Correct answer is B. And rubidium consists two isotopes, 85 and 87. The percent abundance of the lighter isotope 85 is 72.2%. What is the percent abundance of the heavier isotope? So atomic mass is given. Uh, since the total abundance must be summed to 100%, and the percentage abundance of heavier isotope 87 is 100 minus 72.2, which is 27.8%. We will discuss exercise question answers. So, पहले ही short question answers. First question is, why is it said that almost all the mass of an atom is in the nucleus? कि जो सारा mass होता है एक atom का वो उसके nucleus में क्यों होता है? Because the nucleus has proton and neutrons which are heavy. कि एक जो almost all the mass of an atom is in the nucleus because the nucleus contain protons and neutrons which are very heavy particles. एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि हैवी पार्टिकल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट. सो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सो दे डोंट ऐड मच मैस. इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं इसलिए वो एटम के टोटल मैस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते. And electrons are very light and their weight is almost zero as compared to protons and neutrons. That's why really that's why nearly all the atoms weight is in the nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से एटम का सारा जो वेट है वो न्यूक्लियस में होता है. Why are elements are different from each other? Elements are different because they have different number of protons. Elements different क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें different number of protons होते हैं. हर element में जो atoms होते हैं उनमें number of protons different होते हैं. The number of proton in an atom decide which element it and what properties it has. क्या होता है कि हर एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन की अमाउंट डिफरेंट होती है. दिस नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट डिसाइड द आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ये नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है और ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन आइसोटोप्स बिस्मिथ. बिस्मिथ के आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जिसमें मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं. तो मैस नंबर है 210 एंड एटॉमिक नंबर है 83. तो न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए मैस नंबर से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो रिमेनिंग 127 व्हिच इज न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन बिस्मिथ 210 आइसोटोप. व्हाई ट्राइटिनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. अच्छा, ट्राइटिनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ट्राइटिनियम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन एंड टाइटेनियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है जिससे न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है. कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है विच मेक इट अनस्टेबल. तो स्टेबल होने के लिए ये एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, रेडिएशन इमिट करता है और एक और एलिमेंट में चेंज हो जाता है जिसको कहते हैं हीलियम-3. तो ये कॉम्बिनेशन इसको अनस्टेबल बनाता है. So, to become stable, it emits radiation and surge into another element which is helium-3. तो स्टेबल होने के लिए ये रेडिएशन इमिट करता है और एक और एलिमेंट में चेंज हो जाता है. हाउ कैन एन एलिमेंट एब्जॉर्ब एंड गिव आउट एनर्जी? व्हेन एन एलिमेंट एब्जॉर्ब एनर्जी
its electron jump to higher energy level. अच्छा, जब कोई एटम है वो किसी भी तरह की कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि लाइट या हीट एनर्जी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो दोबारा जब वही एलिमेंट एनर्जी रिलीज करता है, अपने अंदर से इमिट करता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा से जंप करके हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट और रेडिएशन। तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why does the energy of an electron increases from the first shell to second shell? Because the second shell is farther from the nucleus, क्योंकि जो फर्स्ट शेल है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा क्लोजर है, और जो सेकंड शेल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। तो टू स्टे फार इलेक्ट्रॉन्स नीड मोर एनर्जी, electrons need more energy to stay farther away, so energy is higher. सेकेंड शेल न्यूक्लियस से दूर होता है, टू स्टे फार इलेक्ट्रॉन्स नीड मोर एनर्जी, दूर रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो फार्दर द शेल द हायर द एनर्जी, जितना दूर शेल होगा तो उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए होती है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लोअर द गैस प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब? Low pressure reduce gas particle collision, and this help electron move freely and heat atom, so we can study as they behave. Okay. uh, Low gas pressure reduce collision between gas particles. कम प्रेशर से गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा नहीं टकराते, तो इससे क्या होता है कि दिस हेल्प इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली एंड स्ट्राइक एटम। इससे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और एटम से टकराते हैं, एंड इट हेल्प अस स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर इजीली। Next, question number three. What was the old idea of an electron, and how has it changed? Earlier, people thought the electrons move in a fixed circle around the nucleus. तो पहले क्या होता था कि ओल्ड आइडिया के इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल के इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूमते हैं। लेकिन न्यू आइडिया क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मूव इन द एरियाज कॉल्ड क्लाउड्स। तो न्यू आइडिया के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन डोंट मूव इन अ फिक्स्ड पाथ। नए मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में मूव नहीं करते, and they move in areas is called electron clouds, and their exact location cannot be known. This is called quantum model. Okay, तो मतलब न्यू मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं एरियाज में जिनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं, एंड वी कांट नो देयर एग्जैक्ट पोजीशन। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, जस्ट एक थ्योरी है कि जस्ट एक प्रिडिक्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रहते हैं, और ये न्यूक्लियस के सराउंड में हमें मिल सकते हैं, वे न्यूक्लियस के सराउंड में हो सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई आर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल? बिकॉज दे हैव टू मच एनर्जी और टू मच न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में टू मच न्यूट्रॉन्स और टू मच एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दिस मेक देम अनस्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है, एंड देन इट बिकम स्टेबल। इस वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, टू बिकम स्टेबल दे रिलीज रेडिएशन। तो स्टेबल बनने के लिए वो रेडिएशन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड साइंटिस्ट नो दैट ऑल एटम हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट saw the same particles, electrons and protons in every element. Same particles, electrons and protons in every element and behave the same in every gas. डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में सभी गैसेस से सेम पार्टिकल्स रिलीज हुए थे, एंड दिस शो दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड इन ऑल एटम। एंड इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी एटम्स में होते हैं, एंड शोइंग दे आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा ना सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बहुत बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है और हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये सबसे सिंपल एटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी एक्सप्लेन आयनाइजेशन बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कैन गिव ऑफ एनर्जी or particles and this energy can remove electrons from other atoms। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट करते हैं एनर्जी या पार्टिकल रिलीज करते हैं, जैसे अल्फा बीटा या गामा रेज को रिलीज करते हैं। एंड उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी रिमूव करती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम अदर एटम एंड मेक देम आयंस। ये एनर्जी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है एंड दिस टर्न दोज एटम इनटू आयन। इस वजह से वो एटम आयन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी क्या है एंड इसके यूजेस। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटम एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज करता है। रेडियोएक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम्स रिलीज एनर्जी और पार्टिकल्स। रेडियोएक्टिविटी का मतलब है कि जब अनस्टेबल एटम एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज करे। इसके क्या यूजेस हो सकते हैं मेडिसिन के अंदर, टू ट्रीट कैंसर रेडियोथेरेपी यूज़ की जाती है टू ट्रीट कैंसर डिजीज। इंडस्ट्रीज के अंदर टू चेक लीक्स और फॉल्ट इन मशीन्स, मशीन के लीक्स या फॉल्ट्स को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर टू किल हार्मफुल पेस्ट इन स्टोर्ड फूड। स्टोर फूड में से जो इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं उन्हें किल करने के लिए भी यूज़ की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडिएटिव एटॉमिक मास ऑफ मर्क्यूरी। ऐसे एक डेटा गिवन है एंड दिस इज आल्सो गिवन इन योर बुक कि यहाँ पर मरकरी की आइसोटोप मास और रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। तो इसको सिंपल फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि जो आइसोटोपिक मास है उसको अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लें एंड 100 के साथ डिवाइड करें। सो रिमेनिंग आंसर इज टू 7.95। सो रेडिएटिव एटॉमिक मास ऑफ मर्करी इज 227.95 एटॉमिक मास यूनिट। लास्ट टू क्वेश्चन है कि हाउ डू साइंटिस्ट मेक न्यू एलिमेंट इन द लैब। साइंटिस्ट नया एलिमेंट लैब में कैसे बनाते हैं। दिस स्मैश ऑल एटम्स टुगेदर बाय यूजिंग मशीन कॉल्ड पार्टिकल एक्सीलरेटर। साइंटिस्ट मशीन को यूज करते हैं जिसे पार्टिकल्स एक्सीलरेट कहते हैं। दिस क्रिएट बिगर एंड न्यू एटम, दिस join them to form new and bigger elements। तो इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस में नए और बड़े एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। अ सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम लाइक अवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम। अच्छा, बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करते थे अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट। जैसे कि एक सन के अराउंड में प्लैनेट्स मूव करते हैं। बट दिस इज नॉट फुली करेक्ट, ये 100% करेक्ट नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल था कि बोहर मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं जैसे कि प्लैनेट सन के इर्द गिर्द। बट नाउ क्वांटम मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव इन फिक्स्ड पाथ। Yeah, this is to quantum model. Instead, they exist in a clouds areas where their position is uncertain, explained by quantum mechanics. क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड पाथ्स में मूव नहीं करते एंड दे एग्जिस्ट इन क्लाउड्स एंड देयर पोजीशन कैन नॉट बी नोन एग्जैक्टली। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में होते हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं होती। सो यही था आज का लेक्चर एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।